Kalos Rema, hallelujah. Something as very, very important, hallelujah. It's not I who want to speak. Church, it is not I who wants to speak, but there is a man of God, Kaloso, Kaligo. Oh, hallelujah, hallelujah. My heart is rejoicing, hallelujah. इससे पहले कि मैं कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ूं, हमारी टीम जो है उसके लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करना चाहता हूं। हमारी टीम ने एक बड़ा अच्छा एक मिशन ट्रिप किया है, जिसके लिए मैं सबसे पहले अपनी टीम के लिए खुदा का बड़ा शुक्र अदा करता हूं। रेवरेंड कामरान पीटर, उनकी वाइफ और सिस्टर सीमा और सिस्टर ननप्रीत और Sister Christina, Brother Rohan and family, Brother Sunny and family, Brother Sunil and family, Pastor Haroon, Angels and family, we were together. और जब भी हमारी टीम, hallelujah, who is uncle? Oh, sorry, yes, sir. Last Samuel. but not least, very, very important part of our family, Uncle Samuel, hallelujah. We love you so much. और शिगुप्ता ने मुझे याद करवाया, इससे पहले के कलाम की तरफ बढ़े, जैसे कि डिसाइडेड था, पास्टर कामरान ने कहा कि आज हम डिस्कस करेंगे मिशन वीक के बारे में। इट वाज ट्रेमेंडस वंडरफुल वीक एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, आपकी प्रेयर्स के लिए, क्योंकि सिर्फ वी आर नॉट सेइंग दैट यू, आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट तो हमारे साथ थी, उसके अलावा आपकी प्रेयर हमारे साथ थी, और आपकी जितनी भी काविशें थी, व्हाटएवर यू हैव डन for the kingdom of God, it is received and the Lord is well pleased with that. Thank you so much. Yeah, many responses coming and we are so happy. जितने faces यहाँ पे मौजूद हैं, ये ना समझे क्योंकि there is a brain of ministry. जब हम सब इकट्ठे होते हैं तो खुदा के जलाल के लिए something new always should come out. Hallelujah. और ये ऐसा हुआ है, हमने बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स की हैं, हमने बहुत सारी प्लानिंग्स की हैं. Lot happen, church. Hallelujah. Many things happen in our life and I thank you Jesus for each and everyone's life. Hallelujah. Hallelujah. Many people are here. Please, if you are clever and if your mind is alert and your spirit is ready, you're going to receive an epiclopsis, a revelation of God. Hallelujah. Thank you, Sister Sweetie, for a beautiful जो आपने ये जो हाथ को हिलाना है जो है, this is very good because some people are responding. If you're too fast, if you're clever, if you're wise, and if you respond, and the Spirit of the Lord will respond to you, and His response will be better than anybody else's. Hallelujah. तो आइए अपने टॉपिक के बारे में बातचीत करते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक it's going to be a life changing. It's going to be something new, a fresh manna from God. Galisa manta karabab Yeshua. आज जब मैं अंकल सैमुअल के साथ बात कर रहा था, so you know the people of God, listen people of God, it is very important. Hallelujah. It is paramount important to hear something from God. If you believe that we are the people of God and the Lord is speaking, a mind of God is here. Hallelujah. So I need somebody's ear. Hallelujah. Tell God, God give me a ear to hear. What are you going to say, people of God? God give me a ears to hear. Hallelujah. The word of God. और खुदावंद आज आपसे मुखातिबार बोलने के लिए तैयार बैठे हैं. Holy Spirit is the most powerful word. Holy Spirit is the most powerful force in this earth. Hallelujah. जो आपसे बोलने को तैयार है. अगर आपके पास कुछ है लिखने को तो जरूर लिखिएगा, because I don't know, it will come out from my heart, but it's not my heart. Hallelujah. And today you're gonna learn something very technical. Hallelujah. मैं अंकल सैमुअल से बात कर रहा था and it was prophetic. I was sitting in Sister Nanpreet's house and I was speaking to Uncle Samuel. So the Lord has ministered me that speak to him something about soul. And वो teaching Pastor Kamran ने pick कर ली, because he is also ये भी खुदा के खादम जो हैं, हम दोनों prophetic में move करते हैं. तो उन्होंने कहा this teaching is for somebody's need. ये किसी की जरूरत है, तो I want you to share it on our platform, our glory platform, our people, our ecclesia, जितने लोग हमारे साथ हैं, church के साथ share करें. So I will try to be in like bilingual, जितनी language मुझे आती है, मैं कोशिश करूंगा उन सब में आज Apocalypse, the word of God, hallelujah, आपके साथ शेयर कर सकूं. तो आज का टॉपिक जो रहेगा, hallelujah, it will be, आप सबने देखा है, उसके लिए पास्टर जी ने एक फ्लायर भी बनाया है, and that is body, soul and a spirit. Hallelujah. कितने लोग अपने हाथों को बढ़ाएं? मैंने बहुत सारे ईमानदारों से बात की है. I'm not talking about all, लेकिन काफी लोगों को बॉडी का सबको पता है, स्पिरिट का भी सबको पता है, but they are confused about soul. How many people are here who they know what is the difference between soul and spirit? Hallelujah. I want to see your, बेटे शर्माना नहीं, अगर नहीं पता तो don't raise your hand, otherwise it will be a lie. Don't lie, you don't have to lie. मैं shuffle करूंगा and I will see how many people knows about it. Hallelujah. I know it. Very good, Jessica.
And okay, sister Alishba, Manpreet कहती है, I know it. Hallelujah. How many people? Sister Chris, sweetie Christian. Okay. How many more people? Sister Christina, Sister Violet. Hallelujah. Hallelujah. Galizo, Brother Rohan. Hallelujah. Hallelujah. Rama Santa Karababi Antushri. Brother Sunil Joshua. Yes, as usual. Hallelujah. 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 Okay, church. The revelation I'm going to share and apocalypse I'm going to share, it is a body, soul, and spirit. Father, in the mighty name of Jesus, may this revelation sink in their spirits, and they will come out from their worries, and they will come out from their problems, they will come out from their troubles, and it will become the path of their knowing, aido. Then they will free from the bondages in the mighty, mighty name of Jesus. Yesu Masih Nasri ke naam se, Amen and Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let's start our topic, and I would like to make a request to my beautiful wife Shagufta कि वो आज की वर्स को पढ़ें और थोड़ा सा इसके बारे में बताएं. Then I will move forward and I will destroy today. Hallelujah. Destroy. You know what is the bigger deliverance? When your ignorant is confronted. Hallelujah. जब जहालत को सामने से आंसर मिलता है अक्लमंदी के साथ. So that is the biggest deliverance. Everybody says biggest deliverance. Hallelujah. I can hear some mouth there. Like, you know, they're moving, they're enacting. Hallelujah. Yes, हमारी पहली वर्स रहेगी, आज की पहली वर्स जो आज रहेगी. Hallelujah, church. Praise the Lord. Hallelujah. हम सब तैयार हैं कलाम मुकद्दस में से सीखने के लिए. कलाम मुकद्दस में से निकालिए पहला थेसलोनिकियों उसका 5 बाब उसकी 23 और 24 आयत को मैं आपके सामने रीड करूंगी. आप सब निकाल लीजिए ताकि मैं पढ़ूं और आप सही से समझ पाएं. खुदावन के जिंदा कलाम में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावन यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहें. तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा. हालेलुया. हमारा बुलाने वाला सच्चा है, जो इत्मीनान का चश्मा है, वही हमारी रूह जान और बदन को बिल्कुल पूरे पूरे तौर पर बेऐब और महफूज रखेगा. हालेलुया चर्च. इस बात के लिए हमारे दिल में एक इत्मीनान है कि हमारा खुदा जो सच्चा और भला खुदा है, जो इत्मीनान का चश्मा है, वो हमारी रूह बदन और जान की हिफाजत आप करेगा. हालेलुया. Hallelujah. Some people, they were saying what was the verse. So 1 Thessalonians chapter number 5 and verse number 23. Hallelujah. Blessing and admonitions. Hallelujah. Thank you so much, Reverend Cameron Peter. It's beautiful Bible के लिए. मैं आपको आपके सामने वर्स पढ़ने जा रहा हूँ. 1 Thessalonians chapter number 5 and verse 23 and verse number 24. And it says over here, hallelujah, watch this. Now may the God of peace himself sanctify you completely. Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, watch this, may your whole spirit, soul and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. He who calls you is faithful, and who also will do it. Everybody will say amen and amen and amen. Hallelujah. 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 Church, ये एक बड़ा interesting topic है. It is very interesting and it is very technical topic as well. It is for the learned people. Hallelujah. मैं पहले बता दूं, ये mature peoples के लिए है. I will try to make it as simple as I can. Hallelujah. I am not a teacher, but Holy Spirit is a teacher. I am not a deliverer, but my Jesus is a deliverer. Hallelujah. Church, आज आपके सामने मैं जो वर्स पढ़ी है उसके हवाले से मैंने आपको कोट कर दिया है. This is the verse of the day. Hallelujah. इसके साथ बहुत सारी वर्सेस हम पढ़ेंगे और we will get to somewhere. Hallelujah. Deep down into your Noah, when you will start knowing what is happening actually inside of you. लोग ऐसा बिहेव क्यों करते हैं, लोग ऐसे क्यों हैं, हमें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, what actually it is. Hallelujah. Everything what is you're going to hear, it is from God. Hallelujah. It's purely from God. Hallelujah. And I'm really excited to teach you. I am, oh my God, in fact I am receiving something for myself. This word is for me first, this word is for my wife first, and this word is for my children first. And people of God, church, bear in mind, आज के कलाम जो है, आज के जो words हैं, it will stay forever with you. Hallelujah. It will change your life. और आपके बच्चों की, आपकी generations, आपके church की और आपकी हर चीज जो आपके साथ belong करती है,
It will change, dramatic change. Hallelujah. मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ. मैं body, soul और spirit के बारे में बात करने को हूँ. तो my opening statement will be, hallelujah. The opening statement will be like that. It is really paramount important to hear what actually we are. I would have called it, what should I call it? Anatomy of human being. Hallelujah. This is a new word came in my mind, but I can tell you what is this. Hallelujah. Let's learn something about body, soul, and spirit. My opening statement will be like that. Watch this. The word of God says, a man is a spirit. He lives in a body and he possesses soul. आदमी जो है वो क्या है? एक आत्मा है, एक रूह है, और वो जिस्म में रहता है और उसके पास एक कदर जान भी है और वो जान भी रखता है. हालेलुया. मेरी कोशिश होगी इन इंग्लिश, इट्स वेरी क्लियर, बट जितनी मैं कोशिश कर सकूंगा मैं उसको इंग्लिश और उर्दू दोनों में चलाने की कोशिश करूंगा. सो मैंने आपके सामने स्टेटमेंट रखी है. अ मैन इज अ स्पिरिट, ही लिव्स इन अ बॉडी एंड ही possesses a soul. हालेलुया. So let's move, and I'm going to make few statement, and it will be paramount important to hear that. Hallelujah, church. बहुत ध्यान से सुनना है. जो पार्ट आप मिस करेंगे, you will not understand the next, because everything is connected right next to each other. Hallelujah. हर एक जो दीवार है वो दूसरी दीवार के साथ मिलती है, तब जाके आप अंडरस्टैंड करेंगे. It's gonna be a bit dry, but I in the mighty name of Jesus, I ask the deliverance of God. I ask the strength of God and the mind of God, a Sophia wisdom in your life in the mighty name of Jesus. मैं पहली स्टेटमेंट आपको बताता चलूं कि बॉडी से आप सब लोग वाकिफ हैं. हालेलुया. जब खुदा ने इब्तिदा में इंसान को बनाया तो बुक ऑफ जेनेसिस, पैदाइश की किताब कहती है कि जब खुदा ने इंसान को मिट्टी से तख्लीक किया, so a earthly suit, this is a dirt suit or whatever you the bunch of dirt or a lump of dirt. This is nothing more than that. It is seen, you can, आप इसको देख सकते हैं. ये बॉडी आपके सामने है और इसके अंदर रूह के बारे में भी हर एक शख्स जानता है. हालेलुया. जब आदम को खुदा ने बनाया तो उसको जब खुदा ने मिट्टी से पैदा किया और जब वो पड़ा था तो वो क्या था? बेजान था. एंड जब बेजान था तो खुदा ने क्या किया? उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका. ऐसी वर्सेस मैं कोट नहीं करूंगा because you all are Christians and you know that that is a homework for you. This is very famous. You can go back to book of Genesis and book of Genesis right after the book of Revelation. If you know about that, then you need a deliverance. Hallelujah. अगर आप वाकई में book of Genesis, it is the very first book. Hallelujah. If you know about it, Sister Salma Shahid, she is laughing. It means that she knows what I'm talking about. Hallelujah. हम हंसेंगे भी साथ में. I'm not here to मैं किसी को disturb करने नहीं आया. But one thing definitely will happen. Hallelujah. आज कोई शख्स बहुत ज्यादा बुरे तरीके से destroy होने वाला है, and that is Satan. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. जब खुदा ने इब्तिदा में जब खुदा ने सब कुछ क्रिएट करने के बाद आदम को बनाया तो उसने आदम को क्या किया? मिट्टी से पैदा किया और उसके नथनों में, हालेलुया, he breathed into his nostrils. He breathed into his nostrils. Hallelujah. जब उसने उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, हालेलुया, जब दम फूंका तो आदम जीती जान हुआ. इसका मतलब है कि उससे पहले he was in dirt suit, completely ready, hallelujah, but he was not alive. Hallelujah. That's why the word of God says, word kills but spirit giveth life. Hallelujah. जो अल्फाज हैं वो मार देते हैं, लेकिन क्या करती है? रूह जिंदा करती है. और रूह कहां से आता है? खुदा की तरफ से. इसका मतलब है दो चीजें आपके सामने मैंने एक्सप्लेन कर दी है. व्हाट इज ह्यूमन बॉडी? इट्स अ बंच ऑफ डर्ट, इट्स अ लंप ऑफ डर्ट. ये अर्थली सूट है जिसके अंदर हम रहते हैं. एक्चुअली हु वी आर, हमारा खुदा रूह है. वी आर ऑल्सो अ स्पिरिट. मिनट अगो आई हैव जस्ट टोल्ड यू. प्लीज ऐसी स्टेटमेंट को भूलना मत. हम जो क्या है वो स्पिरिट है. I may not be able to explain the whole topic. I can speak the whole day. Hallelujah. Just on these three words. But it is paramount important to hear what is your need. आज किसी की जरूरत है कि लोग ऐसा बिहेव क्यों करते हैं, ऐसी बात क्यों है. तो मैं अभी I haven't even started my topic. I just wanted to give you a guideline and information that you may understand what I'm saying. Am I really fast? अगर मैं ज्यादा फास्ट हूं तो मुझे बता दें. Then I will go little slow. But if you guys are very slow, then it is going to be a trouble. अगर आप बहुत slow हैं, तो फिर आपके लिए इस revelation को catch करना बड़ा मुश्किल है. If you're running, you're okay. If you're walking, still it's okay because you can catch it. If you're stuck, you will definitely fall. आप गिर जाओगे और आप इस
जो हमारा रेवलेशन जो खुदा दे रहा है, इसको आप नहीं पकड़ सकते। हालेलुया चर्च। तो मैंने आपको बताया कि आदम जो है वो क्या है, एक डर्ट में रहता है। हालेलुया। उसका जो अर्थली सूट है, इट्स अ डर्ट, इट्स अ बंच ऑफ डर्ट। यस सुनैना, यू आर हियरिंग दिस। हालेलुया। मैं देखता हूं कि ये जो आप डर्ट या अर्थली सूट में रहते हैं, एक दफा का जिक्र है कि मैंने सुनैना के साथ बात करना शुरू की और सुनैना वाज वेरी हैप्पी। मामू जी, आई रियली वांटेड टू लर्न अबाउट इट, आई एम रियली एक्साइटेड, what is it all about? इसने कहा it is the anatomy of human being. मैंने कहा of course one day definitely I will share this information with you, Lord, and today is the day. Tell yourself, today is my day, and today is आज मेरा दिन है, and I will hear it from God. आज आपके सामने बात करना चाहता हूं जिस्म से आप सब वाकिफ हैं, जिससे सब लोग प्यार करते हैं, और रूह से भी हर एक शख्स वाकिफ है, लेकिन जो चीज बात करने वाली है, हालेलुया, काली समन थाला रबिया, आज जो चीज बात करने वाली है वो है जान या आपकी सोल। वर्ड ऑफ गॉड डज नॉट से बॉडी, सोल और स्पिरिट, इट सेज बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। हालेलुया। एंड और में फर्क है, या में फर्क होता है, क्योंकि ये आप जानते हैं ग्रामेटिकली भी जब एक चीज को ऐड किया जाता है, कोई डिफरेंट आइडेंटिटी आती है तो हम उसको ऐड करते हैं। हालेलुया। लेट्स गो टू द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। रेवरेंड कामरान, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक। हालेलुया। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि खुदा उनके खादम ने ये बड़ा खूबसूरत टॉपिक है, एंड इट इज वेरी वास्ट। मैं आपको बताता चलूं, लेट्स स्टार्ट। माय ओपनिंग स्टेटमेंट हैज बीन डन ऑलरेडी एंड आई एम गोइंग टू मेक अ फर्स्ट पॉइंट। हालेलुया। देयर इज नथिंग, oh hallelujah, before I give this statement I want to tell you कि खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह में एक आप देखते हैं ट्रिनिटी। so there is a triunity in a human being, body, soul and spirit. Hallelujah. It is a triunity of the human being. Hallelujah. Triunity. Hallelujah. Triunity मतलब तीन चीजें हैं, बाप, बेटा, पाक रूह, जिस्म, जान और बदन, जिस्म, जान और रूह, सॉरी, जिस्म, जान और रूह। इसी तरह जब मैंने आपसे जिस्म के बारे में बात की है, रूह के बारे में बात की है, रूह खुदा की तरफ से आती है, जिस्म जमीन पर बनता है, और आजकल जब खुदा ने पहला ह्यूमन बीइंग आदमी को बनाया मट्टी से, उसके बाद सारे ह्यूमन बीइंग थ्रू ह्यूमन बीइंग क्रिएट होते चले गए, और आगे जब इसके बारे में हम सीखेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं सोल, एवरीबॉडी विल कॉल इट सोल, जान। हालेलुया। क्या आप जानते हैं कि जान कितनी चीजों पे मुश्तमिल होती है? हाउ मेनी पीपल नोज दैट soul contain or how many things? Hallelujah. It is just thank you. अब कोई हाथ नहीं उठा रहा। Hallelujah. Hallelujah. Because this is what the revelation is. Hallelujah. Soul contains on three things. Hallelujah. आपको बताना चाहता हूं, soul is equal to mind, will and emotions. आपकी माइंड के लिए जो वर्ड चूज किया गया है वो है हार्ट, सबकॉन्शियस माइंड, आगे चल के सीखेंगे, लेकिन आप एट द मोमेंट लिख लें माइंड। माइंड इज इक्वल टू सबकॉन्शियस हार्ट, एंड सबकॉन्शियस हार्ट इज इक्वल टू अ हार्ट। माइंड इज इक्वल टू सबकॉन्शियस माइंड, एंड सबकॉन्शियस माइंड इज इक्वल टू हार्ट। ठीक है। विल का मतलब होता है मर्जी, जो हम विल लिखते हैं, जो विल का मतलब होता है मर्जी, आपकी मर्जी जो है, दिस इज योर विल। हालेलुया। और इमोशन से आप सब वाकिफ हैं, स्पेशली द वुमेन्स, दे आर टू इमोशनल समटाइम। हालेलुया। जो औरतें होती हैं तो बहुत ज्यादा इमोशनल होती हैं, इसी वजह से द थर्ड पार्ट ऑफ योर सोल इज इक्वल टू इमोशंस। हालेलुया। एंड माइंड विल बी द सेंटर। हालेलुया। कालीगो रंथा काराबाबिया हुआ, जो माइंड है वो आपकी सोल का सेंटर पार्ट है, और जो सोल है इट इज अ सेंटर पार्ट ऑफ योर बॉडी। हाउ मेनी पीपल आर हियर? they didn't get it. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. मेरे I wish if I would have a diagram, मैं next time अपना बोर्ड ऑर्डर करने लगा हूं, and I will have a diagram. Hallelujah. इसको यहां रखिए, पकड़े से। Okay, there will be something, body, soul and spirit. और soul के भी 3 पार्ट हैं। आप गौर से देखें, मैंने prophetically इसको चुन लिया है। ये जो मोबाइल है, ये आपको सोल की डेफिनेशन बताने लगा है, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। हालेलुया। और स्पिरिट देखिए सबसे पीछे, सबसे आगे बॉडी है, मिडिल में आपकी सोल होती है, और सबसे पीछे क्या होती है? आपकी स्पिरिट होती है। दिस इज द एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बीइंग। और इसी तरह आपकी सोल के भी 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले जो आपके पास क्या होता है? आपकी विल होती है, और उसके दरमियान क्या होता है? उससे सबसे पहले इमोशंस, इमोशन के बाद माइंड,
माइंड के बाद क्या होते हैं? आपकी विल होती है। इमोशन, माइंड एंड विल, मैं आपको इसको डीपली एक्सप्लेन करूंगा। एंड दिस इज बाय द वे, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इमोशन, माइंड एंड विल। माइंड जो है, मैंने आपको कहा था माइंड जैसे कंप्यूटर है, जैसे ये एक मैंने मोबाइल आपके सामने रखा है, मेरे पास ज्यादा चीजें नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, आई एम डूइंग माय बेस्ट। कैन समबडी टाइप इट? प्रीच मैन ऑफ गॉड, प्रीच, हालेलुया, हालेलुया, आई एम डूइंग माय बेस्ट, आई एम डूइंग माय बेस्ट, हालेलुया, हालेलुया। चर्च, क्या आप समझ सके हैं जो मैं कह रहा हूं? हालेलुया, 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 हालेलुया। बॉडी, सोल एंड स्पिरिट, मैं इसलिए आपको, थैंक यू सो मच, हालेलुया, थैंक यू ब्रदर रोहन, मे गॉड ब्लेस यू, आई एम डूइंग माय बेस्ट, हालेलुया। मैंने कहा बॉडी, सोल एंड स्पिरिट, थैंक यू सो मच, एवरीबॉडी इज टाइपिंग इट। इसका मतलब सब अपनी अटेंशन को पे कर रहे हैं। आप एक अदर बॉडी रखते हैं, उसमें एक सोल है और पीछे आपके स्पिरिट है। एवरीथिंग इज क्लियर। आपकी रूह सबसे पीछे है, आपका जिस्म सबसे आगे है, आपके मिडिल में आपकी जान है, और उसके बाद क्या है? आपकी सोल के भी देयर आर 3 पार्ट्स, हालेलुया। मैंने पहले क्या कहा? इमोशंस है, इमोशंस के बाद क्या है? आपका माइंड सेट है, जिसे माइंड कहते हैं, जिसे हार्ट कहते हैं, और उसके बाद आखिर में आपका क्या है? विल। विल का मतलब होता है मर्जी, विल का मतलब होता है पावर, हालेलुया, हालेलुया। लेट्स टॉक अबाउट विल। कालीसो मंथा लराबाबियन तुष्टिया, प्रीखा सांता करबिया। विल, व्हाट इज विल एक्चुअली? लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट विल। एवरीबॉडी इज क्लियर? आर वी देयर चर्च? हालेलुया, हालेलुया, यस वी आर हियर। मैं आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन दूंगा, लेकिन इट विल हेल्प यू, हालेलुया, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू, हालेलुया, बाय द पावर ऑफ होली गोस्ट। देयर इज नथिंग ऑन दिस अर्थ as powerful as human being, हालेलुया। इस दुनिया में आपकी विल से ज्यादा पावरफुल चीज कोई दुनिया में है ही नहीं, हालेलुया। व्हाई? हालेलुया। यहां पे एक मैंने स्टेटमेंट दी है, देयर इज नथिंग ऑन दिस अर्थ एज पावरफुल एज ह्यूमन विल, दैट गॉड हिमसेल्फ कैन नॉट, हालेलुया, कैन नॉट कंट्रोल इट। हाउ मच इंपॉर्टेंट इट इज, गॉड हिमसेल्फ कैन नॉट कंट्रोल इट। इट लुक्स डिफिकल्ट to understand. खुदा भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, because will is yours, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Because very nature of wills employs self control. God gave you the power of will, hallelujah. क्योंकि ये जो आपकी will है, ये आपको self control देती है। ये वो will है, ऐसी पावर है जो आपके पास थी। मैं इसको एंड पे जाके एक्सप्लेन करूंगा पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ, how will it work। इससे पहले इसको समझना जरूरी है कि what is will? Will is a power, आपकी मर्जी है जो खुदा ने आपको बख्शी है। That's the first powerful statement I've given. And the second statement, this will control the destiny of a man. ये हर एक इंसान की मंजिल का तयन करती है, हालेलुया, हालेलुया। When God wanted to establish his kingdom on this earth, he wanted to administrate through your will, हालेलुया। Oh kalaba santa karabian tushtibiya, oh हालेलुया, हालेलुया। जब खुदावंद इस दुनिया पर अपनी किंगडम को, अपनी मर्जी को लाना चाहते थे, तो वो आपकी मर्जी के वसीला से, हालेलुया, थ्रू योर विल ही वांटेड टू एडमिनिस्ट्रेट, हालेलुया, वो इस जगह पर एस्टैब्लिश करना चाहते थे। बट डेंजरस, हालेलुया, 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 योर विल इज डेंजरस, दैट इज व्हाई दैट योर विल इज योर्स। इसका मतलब क्या है? एक डेंजरस बात है, एक खतरनाक बात है, क्योंकि ये विल आपकी है, हालेलुया। गॉड गेव यू it to the man, hallelujah। खुदा ने ये आदमी को इसलिए बख्शी, and it is the most precious gift, I would say it is the most precious gift that God ever gave it to humanity, a human being, and it is the most dangerous gift God ever gave it to human being, hallelujah। Everybody is here। अब मैं बताऊंगा dangerous क्यों है और ये इतना precious क्यों है, hallelujah। Precious and dangerous, hallelujah। It is precious because God has given you this ability. It is a God kind of ability जो खुदा के पास थी, खुदा ने आपको भी दी है, because God gave you same power that God himself possesses. How much important it is, जो खुदा की अपनी पावर है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि आओ हम इंसान को, जेनेसिस में लिखा है कि आओ हम इंसान को, प्लूरल, God the Father, Son and Holy Ghost says, आओ हम इंसान को अपनी छवि पर, छवि के लिए जो वर्ड यूज किया इंग्लिश में, लाइकनेस। लाइकनेस का मतलब होता है ऑन इमेज, हालेलुया। अगर आप कॉइन को लेकर किसी चीज के ऊपर ऐसे प्रेस करें तो उसकी छवि छप जाएगी ऊपर। वी आर एन एक्सप्रेस इमेज ऑफ गॉड। वही विल हमारे अंदर काम करती है जो गॉड के अंदर काम करती है, हालेलुया। आर वी देयर चर्च? इसी वजह से विल इज डेंजरस,
But the danger is that, hallelujah, we are using the same will against the will of God who gave us. Hallelujah. इसका मतलब क्या है कि हम खुदा की मर्जी के खिलाफ उस विल को इस्तेमाल करते हैं जो खुदा ने हमें बख्शी है। हम अपनी मर्जी को फोकियत देते हैं खुदा की मर्जी पर, जबकि खुदा का प्लान था, God wanted to use your will to fulfill his will onto this earth through your will. Hallelujah, hallelujah. और बहुत सारे लोग इस बात को समझ रहे हैं। Are you there, church? Hallelujah. Are you with me? देखें, मैं सोल को ज्यादा इसलिए डिस्क्राइब कर रहा हूं क्योंकि दिस इज वेयर द ट्रबल इज, यहां पर ही प्रॉब्लम है। हालेलुया। इसी वजह से सोल को समझना ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। आगे चल के मैं इसको और भी बयान करूंगा, बट दिस इज पैरामाउंट इंपॉर्टेंट टू हियर दैट व्हाट आई एम सेइंग। हालेलुया। इसलिए विल को समझना बड़ा ज्यादा जरूरी है कि विल क्या कर सकती है, विल से क्या कुछ हो सकता है। आगे चल के माइंडसेट और lot more we gonna learn. Hallelujah. So what is it, what actually the word of God saying? God wanted to fulfill his will through your will on this earth. खुदा अपनी मर्जी को आपकी मर्जी के वसीला से जमीन पर पूरा करना चाहता था। जैसे खुदा उनके खादम पास्टर आसिफ कहते हैं, आसमान की बादशाह का आपको सलाम, वो आसमान की बादशाही की बातें करते हैं, तो विल का होना बड़ा सख्त जरूरी है। But the trouble is that you can use that will against God's will. This is where the trouble is, जो कि बागेदन में हुआ, जिसकी आगे जाके आखिर में हम एग्जाम्पल को सीखेंगे। हालेलुया। The seat of the will. Now watch this, it is paramount important. Hallelujah. Will का मतलब होता है किसी चीज का फैसला ले लेना, किसी चीज के ऊपर कंक्लूजन पर आ जाना। हालेलुया। विल का मतलब क्या है? मर्जी पूरी कर लेना, फैसला ले लेना, या किसी चीज के बारे में कहना, दैट्स इट, दिस इज माय विल। हाँ, मैं चाहता हूं, मैं करूं। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं विल। अब सोचते हैं कि ये विल या मर्जी रहती कहां पर है। इट इज इनसाइड ऑफ योर चर्च बट यू डोंट नो वेयर डज इट लिव। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं ये विल कहां पर रहती है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जस्ट टू हालेलुया। कितने लोग जानते हैं ये विल कहां पर रहती है, ये मर्जी कहां पर रहती है? हालेलुया, हालेलुया। रावी सांचा बरा मानतू स्टोरिया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। बेयर इन माइंड, ये विल कहां पर रहती है? द सीट ऑफ द विल इज द कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। That's where the will lives. क्या कहते हैं? जो आपकी मर्जी है वो आपके कॉन्शियस माइंड में और सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। And now what is subconscious mind and conscious mind? I can tell you something. Hallelujah. Church, please distract नहीं होना. I know it is bit dry, but it is paramount important to hear about yourself. आज आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, आज अपने बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, and this will lives inside of your conscious and subconscious mind. Hallelujah. Conscious mind वो होता है जिसमें आप रहते हैं, ये सारी चीजें। अब मैं सिस्टर स्वीटी को देख रहा हूँ, सिस्टर समीना को देख रहा हूँ। दिस इज माय कॉन्शियस माइंड थ्रू दिस आईज। हालेलुया। आई हैवंट टच्ड माय टॉपिक। हालेलुया। सिर्फ विल को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये विल कहां पे रहती है? आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में। व्हाट इज योर कॉन्शियस माइंड, जिसमें आप रहते हैं? और सबकॉन्शियस माइंड, सबका मतलब होता है डाउन, बिलो। सबकॉन्शियस माइंड इज मोर पावरफुल एंड डीपर देन योर कॉन्शियस माइंड। हालेलुया। प्लीज hear this. Subconscious mind is more powerful and deeper than your conscious mind. Hallelujah, hallelujah. इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। कितने लोग कंप्यूटर से वाकिफ हैं? Hallelujah. Now it will be very very easy for you to understand. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. अब यहाँ पर conscious mind जो है, it is like a RAM. RAM का मतलब होता है, कितने लोग कंप्यूटर की RAM से वाकिफ है? Random access memory इसे कहते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहते हैं। और उसके अलावा एक और चीज होती है हार्ड ड्राइव। पीपल विल कॉल हार्ड ड्राइव, हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव इज योर सबकॉन्शियस माइंड। जितने लोग कंप्यूटर से वाकिफ हैं, they will know better what am I talking about. Hallelujah. जो हार्ड ड्राइव होती है, it is the brain of the computer and it is the brain of human being. ये इसे क्या कहते हैं? That is your subconscious mind. जो आपका, जिसे क्या मैं कहूँगा उर्दू में सबकॉन्शियस माइंड क्या कहते हैं? सभी नहीं, एक ऐसा माइंड। हालेलुया। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं सबकॉन्शियस माइंड की, ताकि आपको समझ में आ जाए। सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली वो है ज़हन कहते हैं। ज़हन कहते हैं, ज़हन कहते हैं। हालेलुया। और इसके अंदर सारी चीजें स्टोर पड़ी होती हैं। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं इस बात को कि सब चीजें इसमें स्टोर होती हैं? अगर कोई शख्स आपको हिप्नोटिज्म के जरिए आपको आपके पास्ट में ले जा सकता है और उसमें जाके वो इंफॉर्मेशन जो स्टोर पड़ी है उसको निकाल सकता है। इट इज वेरी प्रूफ। हालेलुया। देखें, आप चाहें साइकाइट्रिस्ट के पास, जो ऐसे लोग हैं, वो आपको एक हिप्नोटिज्म के जरिए एक ऐसी थेरेपी देते हैं। कुछ लोग होते हैं वो जाके आपको बोलेंगे, आप इस पेंडुलम की तरफ देखें, आप 6 years old हैं, नाउ यू आर इन डीप स्लीप, ब्ला 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 ब्ला,
और वो आपकी बॉडी के साथ खेल रहे हैं। Who created this body? My Lord, आपको पता ही नहीं कि आपकी बॉडी में क्या चीज है। वो आपको 6 साल पीछे, 10 साल पीछे, 20 years ago, आपकी उम्र पे डिपेंड करता है। अगर आप आज 40 साल के हैं तो वो आपको उठाकर कोई 20-25 साल पीछे या 30 साल पीछे या 7 साल का बच्चा बना सकते हैं। आप रोना भी वैसे शुरू कर देंगे, बिकॉज एवरीथिंग इज स्टोर इन योर सिस्टम एंड दैट इज योर सबकॉन्शियस माइंड। हालेलुया। बाय द वे, यू हैव टू माइंड, conscious and subconscious mind, and subconscious mind is equal to your heart. Everybody will say heart. और हिब्रू वर्ड जो यूज किया गया है, इट्स रेफर, सबकॉन्शियस माइंड इज हार्ट। जब भी तो इमसाल की किताब कहती है, ऐ मेरे बेटे अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा क्या है? दिल है। हालेलुया। और ये इस दिल की बात नहीं हो रही। बहुत सारे लोग इस पे इल्जाम लगाते हैं, वो मेरा दिल कर रहा है। इट इज नॉट योर हार्ट, इट इज अ पंपिंग मशीन। कालूजा रेपा काबा सांता कराबिया। ये सिर्फ और सिर्फ जो मेडिकल से ताल्लुक रखते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक पंपिंग मशीन है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है। इट डज नॉट टेक नो इंफॉर्मेशन, इट डज नॉट कंटेन नो इंफॉर्मेशन। हालेलुया। वो सिर्फ ब्लड को पास आउट कर रहा है। और जो आपका हार्ट है, दैट इज एक्चुअली योर सबकॉन्शियस माइंड। हिब्रू वर्ड रिफर to the subconscious mind, and that is equal to heart. How many people understand? Now आगे मैं इसको heart कहकर बुलाऊंगा और आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सबकॉन्शियस माइंड इज इक्वल टू योर हार्ट, जिसके बारे में खुदा ने कहा है कि ऐ मेरे बेटे अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा क्या है? दिल है। हालेलुया, हालेलुया। ताराबा संता करबा मंतु स्टोरिया तेरो मासाला खंता शाकरबिया। हालेलुया। माइंड फीड इंफॉर्मेशन। हालेलुया। अब आज बात करते हैं कि ये माइंड कैसे काम करता है। देखें, जैसे मैंने कहा कि हम एक बॉडी हैं और बॉडी के अंदर कितने सेंसेस होते हैं? 5 सेंसेस। देखना, सूंघना, चखना, सुनना और महसूस करना। हालेलुया, हालेलुया। चर्च आगे दे। हालेलुया। अब यहां पर जो बात हो रही है, दारा सांता करमांता शुक्रिया रेबो संतुलुरिया टेलिमास्ता करबिया, हम उसके बारे में ज्यादा आगे बात करेंगे। और मैं आपको बताना चलूं, दैट्स व्हाई द जो आपका माइंड है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो क्या करता है? कॉन्शियस माइंड इंफॉर्मेशन लेता है, देखते हुए, सुनते हुए, चखते हुए, और जिस तरह से भी 5 सेंसेस इंफॉर्मेशन पास करते हैं। किसको? आपकी सोल को। हालेलुया। देखें, जो भी इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं चर्च, देखने से, सुनने से, बोलने से, चखने से, महसूस करने से, वो क्या हो रही है? आप पास कर रहे हैं योर माइंड, योर सोल एंड योर विल। क्योंकि आपकी सोल 3 चीजों पर मुश्तमिल है, जिसको मैंने कहा था, इसको याद रखना कि सारी इंफॉर्मेशन हमारी कहां जा रही है? माइंड, विल और इमोशंस को। हालेलुया। ओह थैंक यू लॉर्ड जीसस। सारी इंफॉर्मेशन आपके माइंड, विल और इमोशंस में जा रही है। इट इज इंपॉर्टेंट टू हियर। हालेलुया। जब भी तो कहते हैं कि जो इंफॉर्मेशन आपने अपने दिमाग को दी हो जाती है, वो जाके आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, इट इज डेंजरस। हालेलुया, हालेलुया। अब हम बात कर रहे हैं, सोल के 3 पार्ट हैं, माइंड, विल पावर और क्या है जी? इमोशंस। जो इंफॉर्मेशन आपकी बॉडी देती है, वो आपकी सोल में जाती है, आपके माइंड, विल और इमोशन के अंदर चली जाती है। और उसके बाद वो इंफॉर्मेशन को कंटेन करके जो बॉडी होती है, जो सोल होती है, उस इंफॉर्मेशन को किसके पास लेके जाती है? स्पिरिट के पास। हालेलुया। शुगुप्ता इज गेटिंग इट। हालेलुया। इसके अंदर इंफॉर्मेशन आई, हमारे माइंड सेट में रुकी, आगे चल गई। That is why repetition is dangerous. Everybody says repetition is dangerous. वो अमल जो बार बार दोहराया जाए वो खतरनाक है। सब कहेंगे वो अमल जो बार बार दोहराया जाए वो खतरनाक है। क्योंकि देखिए, उससे होता क्या है? जब आपके कॉन्शियस माइंड में अगर कोई इंफॉर्मेशन आ जाती है जिसको आपने देखा, इट्स फाइन, क्योंकि आपने एक्सीडेंटली देख लिया उसको। जैसे कि कुछ लोग हैं जो अपनी जिंदगी में बच्चों को कहते हैं डोंट वरी, बच्चों को मिस्टेक करने दो। The word of God says, be careful. खुदा का कलाम कहता है, take heed what you are hearing. Take heed का मतलब होता है, खुदा कह रहा है, be selective, कि क्या सुनते हो। कलाम कहता है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम में से। इसी तरह जो इंफॉर्मेशन हम सुनने से, देखने से, चखने से, महसूस करने से, टच करने से ले रहे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन जाके सोल में जाती है। और सोल क्या है? बॉडी, आपकी जो सोल है,
वो इट इज इक्वल टू माइंड, विल एंड इमोशन। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपकी बात ये समझ में आ जाए कि जब सोल में इंफॉर्मेशन जाती है, सोल उसको बिलीव करने के बाद वो इंफॉर्मेशन कर देती है पास किसको। अगर यहाँ पे मैं किसी शख्स को खड़ा करूं तो वो मेरी बॉडी है। जब मैं सोल बन जाता हूं और जब मैं स्पिरिट को इंफॉर्मेशन पास करता हूं तो स्पिरिट क्या है? राइचियस है। स्पिरिट कहती है कि दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट राइचियस, हालेलुया, बिकॉज़ द सोल, हालेलुया, इज गिविंग दैट इंफॉर्मेशन टू स्पिरिट, हालेलुया। हमारी जो स्पिरिट है उसको इंफॉर्मेशन दी गई किसके द्वारा? हमारे बॉडी के द्वारा। उसने किसको दी? सोल को दी, जान को दी। जान ने इंफॉर्मेशन दे दी किसको? हालेलुया। आई एम कॉलिंग माय सेल्फ जान। Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Glory be to God. Hallelujah. My wife called me sometime John. So मैं इनकी जान हूं। जो जान इंफॉर्मेशन देगी वो मेरी बीवी, जो मेरी स्पिरिट है, वो इसको कंटेन करेगी और कहेगी this information is not right. There are some very righteous women. Hallelujah. I can see जब उनके हस्बैंड कोई इंफॉर्मेशन बाहर से लेकर आते हैं, जब लोग उन्हें कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन देते हैं, भाई शराब पी ले, भाई ये कर ले, आओ भाई ये कर ले, तो वो इंफॉर्मेशन लेकर घर में आता है। अगर घर में एक दुआ करने वाली औरत होगी, जैसे ही वो स्पिरिट है, जान, उसकी जान जो उसका हस्बैंड होता है, वो इंफॉर्मेशन ला के, मेरे पास अभी भी रेवलेशन आया है, रोते सारी जब बीवी को देता है और बीवी दुआ करने वाली होती है तो वो कहती है दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट राइचियस बिकॉज आई एम बिलोंग्स टू मोस्ट हाई गॉड। वो कहती है कि ये इंफॉर्मेशन राइचियस नहीं है। इसी तरह आपकी रूह भी कहती है कि ये इंफॉर्मेशन राइट नहीं है। लेकिन जान क्या कहती है? जान कहती है कि ये इंफॉर्मेशन मुझे बाहर से मिली है। दैट इज व्हाई योर सराउंडिंग इज मैटर। हिटलर ने कहा था तू मुझे अपने दोस्त बता तो मैं तुझे तेरा फ्यूचर बताऊंगा। बिल्कुल इसी तरह अच्छी जो बुरी सोबतें होती हैं वो अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। जब आप ऐसे एनवायरनमेंट में जाएंगे अपनी बॉडी को लेकर के और जाके ऐसी इंफॉर्मेशन लाकर अपनी बॉडी को फीड करेंगे, अपने सोल को, और उसके बाद जब वो इंफॉर्मेशन आपकी स्पिरिट में जाएगी तो स्पिरिट क्या करेगी? उसको उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी और कहेगी ये इंफॉर्मेशन राइचियस नहीं है। बहुत सारी औरतें कहती हैं मैं आपको शराब पीने की इजाजत नहीं दे सकती, मैं आपको दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं दे सकती। हालेलुया। क्योंकि वो कहती हैं दिस इज अनराइचियस इन द आईज ऑफ गॉड। How many people can understand this? Women बड़ी खुश हो रही हैं। हालेलुया। Women कह रही है मैं आपको दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं दे सकती, और कलाम भी हमें दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं देता जब तक हमारे पास हमारी वाइफ मौजूद है। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखें दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई वाज नॉट नोइंग हाउ टू पुट इट इनटू योर स्पिरिट। हालेलुया। और खुदा, हालेलुया, जब आपसे जिस्म बात करता है तो आपकी सोल के जरिए वो क्या करता है? आपकी स्पिरिट से बात करता है। अब जो स्पिरिट है वो भी आपकी सोल से बात करती है in order to speak to your body. Oh my God, हालेलुया, हालेलुया। देखें ये जो मिडिल पार्ट है इट इज डेंजरस। ये जो आपका जो मिडिल पार्ट है, सोल है, ये डेंजरस है। इसलिए मैं कहता हूं कि देयर आर टू किंगडम, दे आर आफ्टर योर सोल। जो किंगडम ऑफ लाइट है और किंगडम ऑफ डार्कनेस, ये दोनों आपकी सोल के पीछे है, आपकी जान के पीछे है। आपके घर में 365 चैनल लगे हैं और हर एक चैनल एक बटन प्रेस करता है और वो चैनल आपके सामने आ जाता है। खुदा के लोगों वो सारे दे आर आफ्टर योर सोल। गारी सामान ठाला रहा, वो सारे आपकी सोल के पीछे है। मैं आपको बताता चलूं हर एक बटन, दिस इज यू। दैट इज व्हाई द वर्ड ऑफ गॉड सेज, हालेलुया, हालेलुया, टेक हीड व्हाट आर यू हियरिंग। इसका मतलब है बी सिलेक्टिव। क्रिश्चियन लोग हर एक इंफॉर्मेशन को लेने के लिए नहीं बने। मैं बताता चलूं आपको, क्रिश्चियन लोग हर एक इंफॉर्मेशन को लेने में नहीं बने, क्योंकि आपको वहीं पे खड़े होना पड़ता है। ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए है, मैं इसको लेना चाहती हूं, मैं इसको लेना चाहता हूं, मेरे बच्चे के लिए ये इंफॉर्मेशन जरूरी है। लेकिन यहां हम कहते हैं खाली बच्चा है, डोंट वरी, ही विल अंडरस्टैंड। नो चर्च, वो आप उसके माँ बाप हैं। यू विल डिसाइड कि उसने कौन सी इंफॉर्मेशन लेनी है। आज बहुत सारे लोग हैं वो इस वजह से मार खा रहे हैं, बहुत सारे खुदाम हैं। सबसे पहले मैं अपने आप को रखता हूं, अगर आज मेरा बच्चा टेलीविजन पे कुछ देख रहा है तो रेपुटेशन हो रही है, वो उसको बार बार दोहरा रहा है। और सुलेमान कहता है व्हाटएवर मैन थिंक्स इनसाइड ऑफ हिज हार्ट सो इज ही। जैसा इंसान अपने दिल में सोचता है वो वैसा ही होता है। कितने लोग इस बात से अंडरस्टैंड, मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं? जो कुछ आपके दिल में है वो आप हो। आप जितना मर्जी पर्दा डाल लो, मुस्लिम स्माइल बहुत लोग करते हैं, हालेलुया, आई एम स्माइलिंग, आई एम स्माइलिंग। उनके दिल में दगा होती है। रियल इंसान का बाद में पता चलता है कि हु इज ही। लिखा है कि तुम उनके कामों से उनको पहचान लोगे, क्योंकि जो आपके अल्फाज होते हैं, योर थॉट्स बिकम योर वर्ड्स एंड योर वर्ड्स बिकम योर एटीट्यूड। जो आपके ख्यालात होते हैं
वो क्या बन जाते हैं, वो आपके अल्फाज, और जब अल्फाज बाहर आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, आपके एक्शन बन जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आज आप अभी कुछ सोच रहे हैं दिल में कि मैं एक टेबल बनाना चाहता हूं, तो वो आपके दिमाग की तख्लीक है। जब आप उसको टेबल का नाम देते हैं और लकड़ियां खरीद के काटते हैं, बनाते हैं, कल्टीवेट करके टेबल बना देते हैं, दिस इज द इन्वेंशन ऑफ योर हार्ट। हालेलुया। इसका मतलब है बी केयरफुल व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, एवरीथिंग इज कमिंग आउट ऑफ योर सोल, एंड सोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर लाइफ। हालेलुया। जैसे कि मैं बताता चलूं, इसी के पीछे दो किंगडम है, और दोनों किंगडम आपको यही कहती हैं कि एक, अगर आज, जैसे मैं एक मिसाल दूंगा, बहुत सारे लोग हैं जब वो घर पे होते हैं तो वो कुछ और होते हैं, जब बाहर होते हैं तो कुछ और होते हैं, जब वो घर पे जाते हैं तो वाइफ के साथ बात करते हैं, और वाइफ क्या करती है, देखा ना वैसे, देखा ना वैसे, देखा ना वैसे, वो वैसे वैसे कर करके आदमी को वो चीज सोचने पर मजबूर कर देते हैं जो कि आदमी सोच भी नहीं रहा था। आई एम टेलिंग यू चर्च, विमेन के लिए एक बात करना चाहूंगा, विमेन इज अ इंक्यूबेटर। आई डोंट नो वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम, आई डोंट नो, मैंने घर में रहना है लेकिन मैं बता रहा हूँ ये बात कि ये इंफॉर्मेशन, विमेन इज अ इंक्यूबेटर। जो विमेन होती है वो मल्टीप्लिकेशन का काम करती है। ये मैं बात इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर आप उनको एक सेंटेंस दो या एक वर्ड दो, वो उसको सेंटेंस बना देंगे। आप उनको बीज दो तो वो क्या कर देंगे, आपको बेबी देंगी। वट एवर यू विल गिव, इट विल गिव बैक टू यू, बट नॉट सेम, मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ लोग होते हैं जो अपनी इंफॉर्मेशन को किसी सोर्स से हासिल करते हैं। अब यहाँ पर जो बात कर रहे थे हम सोल के बारे में, सोल का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारी जिंदगी में, जिसके बारे में मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, आगे जाके प्रैक्टिकल वे में आपको सजाऊंगा। हालेलुया। कि सोल, बॉडी एंड स्पिरिट किस तरह काम करते हैं। चर्च, कितने लोग मेरे साथ हैं जो इस बात को समझ पा रहे हैं? हालेलुया। कैन समबडी राइट इट व्हाट आई हैव जस्ट, मैंने आपको क्या बताया, व्हाट इज सोल एक्चुअली? हालेलुया। मैं चाहता हूं कि इंफॉर्मेशन आपके पास आए, क्योंकि मैं आगे बढ़ नहीं सकता जब तक मैं आपको इसके बारे में बता ना दूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। What is soul? It is dry subject for those it is difficult to understand. कलाम में लिखा है कि तेरे मुंह को तो कड़वा करेगी लेकिन तेरे अंदर से जिंदगी के नशे में चश्मे जारी कर देगी। हालेलुया, हालेलुया। ये आपके लिए बेटर है। सो मैं फिर बताता चलूं, your soul is equal to mind, will and emotions. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी ने लिखा नहीं है, लेकिन your soul is equal to mind, will and emotions. मैं फिर आपको बताता चलूं, ये इसी के जरिए सब कुछ इसके अंदर हो रहा है। खुदा यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा गो एंड विन स्पिरिट्स, गो एंड विन बॉडीज। देखिए मैं आपको मिसाल देता हूं, आप यहाँ पे मौजूद हैं, आई हैव विन योर बॉडीज ऑलरेडी। थैंक यू सिस्टर मनप्रीत। हालेलुया। सोल इज इक्वल टू माइंड, विल एंड इमोशंस। प्रेज गॉड। हालेलुया। मे यू रिसीव दिस रेवलेशन इन द माइटी माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। जैसे हमारी बॉडी है, उसके बॉडी, सोल एंड स्पिरिट है, इस तरह मैंने सोल की बात की है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता चलूं, तो जो मैं आपसे बात कर रहा था वो यूं है कि आज आप यहाँ पे मौजूद है, बॉडी, Satan is not after your body. You know that. Satan is not after your body. Satan is not after your spirit. Even Jesus is not after your body. Jesus is not after your spirit. देखें, आज यहाँ पे आप मौजूद हैं, कलाम सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि मैंने आपकी बॉडी को विन कर लिया है। Your body is win already. Oh my God. Hallelujah. अभी हालेलुया। बहुत सारे लोग अपने कैमरास को बंद करके बैठे हैं। A moment I will say, can I prophesy? Everybody will switch on their camera. Hallelujah, hallelujah. As soon as I switch it to spiritual to जैसे ही natural से spiritual में move करूंगा, prophetic में सारे अपने ideas on कर लेंगे, लेकिन revelation को लेने के लिए कोई शख्स तैयार नहीं है। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Can I prophesy? Look at this, what people are doing. But today I will not prophesy because you are not honoring the word of God. Church, please. Hear the voice of God. मैं आपसे एक बात कर रहा था, आपकी बॉडी या मौजूद है, इसका मतलब है मैंने उसको जीत लिया है। आपकी स्पिरिट खुदा से है, वो खुदा के बारे में सुनना चाहती है, वो आपके दरमियान बैठी है, लेकिन आप इस हजूरी में बैठ के भी चेंज क्यों नहीं हो रहे? बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। दिस इज वेयर यू आर नॉट डिलीवर्ड। हालेलुया। आपको जो कन्वर्ट करना है वो मुश्किल है, जैसे कि नए सिरे से पैदा हो जाना। कलाम में लिखा है वो जो नए सिरे से पैदा हो, आप कैसे खुदा के पास आ सकते हैं? मैं एक आपके हवाला पढ़ूंगा ताकि नए सिरे से पैदा होना क्या चीज है। हालेलुया। यूहन्ना 3 बाब उसकी 3 आयत को मैं आपके सामने पढ़ूंगी। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। देखिए मेरी बात सुने, देख नहीं सकता, देखना। जब बहुत सारे लोग हैं, नए सिरे से पैदा होना, यीशु को शख्सी निजात देंदा कबूल करना और कहना कि यीशु ही खुदा है, मेरा शख्सी निजात देंदा है, बपतिस्मा ले लेना, दैट्स इट, डन। आप खुदा की बादशाही को देखना शुरू करें। क्या आप उसमें कायम रहते हैं?
कन्वर्टिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपकी रूह तो हमेशा से खुदा से थी, वो चाहती है कि मैं क्या करूं, खुदा में रहूं, खुदा में मसरूर रहूं, वो चाहती है कि मैं, क्योंकि वो खुदा की तरफ से है। लेकिन जब नए सिरे से आप पैदा होते हो, converting is a dangerous thing. That is why it is really hard to convert people. Hallelujah. Convert करने के लिए एक चीज है कि जैसे आपने अपनी हार्ड डिस्क को, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, उससे जो आपने लोगों ने 20 साल से जिनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो पार्ट ऑफ देयर बॉडी बन जाती है। It is dangerous for them to lose, to leave them. That is why repetition is dangerous. Repetition से क्या होता है कि जो आते, जो बातें, जो चीजें आप सुनते, देखते, चखते, करते हो, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर, हार्ट के अंदर जाकर वो बिल्कुल उसको करप्ट कर देती हैं। इसी वजह से मैं आपको बताता चलूं, पीपल ऑफ गॉड, हियर दिस, वॉच दिस, जब आपने अपने हार्ट को करप्ट कर लिया है, नाउ योर हार्ट इज करप्टेड, और उसको सॉल्व करने का एक तरीका है। जिस तरह से उसको करप्ट किया है, उसी तरह से उसको ठीक करने का लिए एक सॉफ्टवेयर है, एंड दैट इज कॉल्ड अ होली स्पिरिट। हालेलुया। द होली स्पिरिट इज अ सॉफ्टवेयर, और उसके अंदर एक चीज है, इंफॉर्मेशन इज द वर्ड ऑफ गॉड। जैसे आपने रॉन्ग इंफॉर्मेशन अपने सिस्टम के अंदर, अपनी सोल के अंदर, उसके पार्ट है जिसे माइंड कहते हैं, जो आपका सबकॉन्शियस हार्ट है, उसके अंदर आपने इतनी सारी चीजें डालकर उसको आपने करप्ट कर दिया है। नाउ दिस इज द टाइम टू हियर समथिंग फ्रॉम गॉड। Software is the Holy Spirit. Everybody will say the Holy Spirit is a software and the information is the word of God. जब आप उसके अंदर जितनी ज्यादा information डालेंगे, your spirit, it will go inside of your heart, and when your heart receive that information, जैसे ही information आपके हार्ट के अंदर जाएगी, it will start to clean it. आप नए सिरे से पैदा होना शुरू। This is where you convert. This is where people says, I know that God. जैसे खुदा जकई के घर में गया, उसके सिस्टम के अंदर खुदा ने एक अपना एपोकलिप्स डाला उसके सिस्टम के अंदर, जब एंटीवायरस इंफॉर्मेशन गई। दैट इज व्हाई द वर्ड ऑफ गॉड सेज इंफॉर्मेशन, हालेलुया, फेथ कम्स बाय हियरिंग, ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना खुदा के कलाम से, और ये वर्ड जब अंदर जाते हैं, दैट इज व्हाई द वर्ड ऑफ गॉड सेज कालाबास संता कालाबिया तुस्टोरियामा ब्रांठा कालाबिया सुआ। देखिए, सुनिए, खुदा के लोगों, खुदा के बेटे और बेटियों, सुनने की बात यह है कि जो चीजें आप सुनते हैं, यू हैव टू डिसाइड व्हाट आई एम हियरिंग। अगर आपने आज अपने दिल को इतना करप्ट कर लिया है, आज अपने अपने हार्ड डिस्क को करप्ट कर लिया है, बाय हियरिंग, बाय सीइंग, बाय वॉचिंग, जिस तरह से भी, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, यीशु कहता है कि बुरी चीजें या बुरी सोचें कहां से आती हैं? बाहर से नहीं आती, बल्कि इंसान को कोई चीज बाहर से खराब नहीं करती, बल्कि अंदर से। उसकी वजह क्या है? जो चीज आप उसको फीड कर देते हो, वो जाके आपके सबकॉन्शियस माइंड, जिसकी खुदा ने कहा है कि आए मेरे बेटे, अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा दिल है। हालेलुया। I hope you understand what I'm saying. This epicalypsis is entering in your system right now in the mighty name of Jesus. और कलाम कहता है कि जब वो इंफॉर्मेशन आपके अंदर जाती है, तो वो आपके दिल को नया करती है, साफ करती है, प्योर करती है। This is where you call yourself born again. Hallelujah. बपतिस्मा लेने से आप बादशाह में एंटर तो हो जाते हैं, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं कि आप बादशाह में कोई ताज भी ले सके, या खुदा के हुजूर उसके फरिश्तों में खड़े होकर उसकी प्रस्तुति भी कर सके। आपको एक रेवलेशन चाहिए, एंड दैट इज द इंफॉर्मेशन। खुदा के लोगों, जिन लोगों ने फोन मूवीज, बैड थॉट, बुरी हरकतों से, बुरी चीजों से अपने आप को, अपनी सोल को डैमेज कर लिया है, तो आपके लिए मैं आज एक नया सॉफ्टवेयर लेके आया हूं, एंड दिस इज माय लॉर्ड Jehovah Jayol, Jehovah Gibor Malchemai. This is the information. Hallelujah. And I am speaking as a man of God. Pastor Harun Angel is giving you a word of God, a fresh manna into your system in the mighty, mighty name of Jesus. And this will change your life. Hallelujah. You will be changed in the mighty, mighty name of Jesus. और आज आपको बताता चलूं, जब ये इंफॉर्मेशन आपके अंदर जाएगी, तो आपके ये जो करप्ट हार्ट ड्राइव है, जो आपका हार्ट है, उसको क्या करेगी? वो साफ करेगी, साफ करेगी। जब साफ करेगी, तो साफ होते होते यू विल बी बोर्न अबव कालीसो फ्रांका सांता कलाबीशुआ, और आपको वॉश करेगी। हालेलुया। और आपके सिस्टम को धोएगी, और उसके बाद उसमें एक नई चीज को एंटर करेगी। और लिखा है कलाम में, मैं तुझे एक नया दिल बख्शूंगा। हालेलुया। गोश्ती दिल अता करूंगा, और वो गोश्ती दिल क्या करेगा? तुम्हें चेंज कर देगा। हालेलुया। When Holy Spirit will get inside of your spirit. Hallelujah. And I can see many people are receiving
दिस अ रेवलेशन ऑफ गॉड। पारा सांता काराबियन तुआ। मैं बताता चलूं चर्च, हालेलुया, ये जो आपके, जैसे कि मैं आपको आखिरी मिसाल दूंगा, जैसे कि इब्तिदा में क्या हुआ कि खुदा ने आदम को बनाया और खुदा ने कहा कि बागबान की इस बाग की बागबानी और निगरानी करें, और खुदा ने कहा कि तू सब कुछ खा सकता है। दिस इज लास्ट एग्जांपल, आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। कालिबियन तू रिबा सांता कालाबिया शुआ। आखिरी एग्जांपल, यू विल अंडरस्टैंड, आप इसको भूल नहीं सकते। देखें, मैं आज इसको आपका इंप्लीमेंटेशन बताऊंगा कि ये कैसे खुदा ने इसको, ईव ने क्या किया, उसने तीनों चीजें इस्तेमाल की है। देखें, जब खुदा ने आदम को कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल खा सकता है, आई एम नॉट हेयरिंग एनीथिंग फ्रॉम नोवेयर, दिस इज द फ्रेश माना, बाग के हर दरख्त का फल तू खा सकता है, लेकिन उस दरख्त का जो बाग के मिडिल में ना खाना। हालेलुया, खुदा ने उसको कहा ना खाना। अब वहां पे क्या मसला था, वहां पे हमारी एक ईमानदारों की मां हवा मौजूद थी। अब वहां पे मैं समझता हूं कि आदमी की गलती थी, आदम की गलती थी, उसने उसको सही तरीके से खुदा के लॉज नहीं बताए। जितने भाई यहाँ बैठे हैं, अगर आज आपकी वाइफ कलाम को सही से नहीं सुन रही, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर द फर्स्ट प्रीस्ट ऑफ योर हाउस। आई एम सॉरी, मैं कलाम में थोड़ा गहरा हो रहा हूं, मुझे नहीं पता था, मैंने सब कुछ नहीं कहना था, बट फ्रेश माना इज कमिंग, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप खुदा में हैं तो भाइयों, आप अपने घर के पहले प्रीस्ट हैं, जैसे आदम था। और आदम ने उसको कहा, उसको सही तरीके से डिटेल में नहीं बताया। आदम बहुत साल ईव से पहले रहता रहा और हर एक काम अच्छे तरीके से करता रहा, उसने कभी भी सांप से बात नहीं करी। बाइबल में कहता है, उसमें कोई बता दे कि अगर उसने सांप से बात की, नहीं की थी। खुदा के लोगों, क्या नहीं की थी? थैंक यू सो मच सिस्टर स्वीटी, थैंक यू सो मच सिस्टर सारा भट्टी एंड मैनी अदर्स। उसने कभी उससे बात नहीं की। लेकिन जब ईव गई, हमारी बहनों को बड़ी विंडो शॉपिंग करने की आदत नहीं, मैं चीज ले रहा हूं, चलो देख तो लूं, और छोड़े जरा मैं देख तो लूं क्या है अंदर। उसने विंडो शॉपिंग की थी वहां पर। वो अमल एक दिन में नहीं हो गया। जब वो गई जाके, उसने, शैतान उसको हर रोज कहता था कि देखो इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ बताता हूं, तो वो हर रोज देखती थी। उसने अपने 5 सेंसेस को इस्तेमाल किया और उसने उन सेंसेस में पहले उसने देखा कि देखने में वो फल कैसा है, खुशनुमा है। हालेलुया, बाय लुकिंग इट लुक्स ब्यूटीफुल। इसी तरह से शैतान आपको वो क्या करता है, गुमराह करता है। उसने अपने सेंसेस को इस्तेमाल किया। हालेलुया, चर्च लिसन टू मी दिस वन वेरी केयरफुल। उसने अपने 5 सेंसेस में से जो बॉडी में थी, जाके उसने देखा कि ये देखने में क्या है, फल अच्छा है। हालेलुया, और जैसे उसने देखा और उसके बाद उसको इमोशंस आ गए। उसने कहा कि आई एम इमोशनली अटैच्ड। उसने कहा ये क्या कर रही हो? उसकी जो सोल थी, उसने कहा कि उसकी स्पिरिट ने कहा कि ईव क्या कर रही है, क्या कर रही है? उसकी स्पिरिट ने उसको कहा, और जब स्पिरिट ने कहा तो जब सोल थी उसने कहा इट लुक्स गुड, इट लुक्स सेंसुअली गुड, इमोशनली गुड। उसने कहा कि ये देखने में मुझे अच्छा लगता है और आंखों के लिए खुशनुमा है और अकल बख्शने को बेहतर है। उसने वो चीजें अपने सोल के अंदर डाली, और जैसे ही उसने रेपुटेशन की, हर रोज उसको देखती रही, देखती रही, देखती रही। जब उसने देखा, इमोशन इन्वॉल्व हुए। पहला जो मैंने आपको बताया था, जो विल का पहला हिस्सा उसने इस्तेमाल किया। उसने आंखों से देखा, दिल में ख्वाहिश की, उसके इमोशन मुतारिक हो गए। उसके इमोशन मुतारिक हुए तो उसने क्या किया, उसके बाद उसने उसको क्या किया, अपने सिस्टम में डाल लिया, जो कि उसका माइंड था, जो उसका हार्ट था। उसके बाद उसने अपनी विल इस्तेमाल की। हालेलुया चर्च, उसने कहा कि ले लो इस फल को। उसने विल इस्तेमाल की और उस फल को लिया और खाया। और कलाम मुकद्दस कहता है, जब तक उसने वो फल खाया कुछ भी नहीं हुआ। उसने फल को लिया, उसने 3 चीजें इस्तेमाल की। अपनी बॉडी से देखा, 5 सेंसेस से देखा, इमोशन इन्वॉल्व हुए, उसने माइंड के अंदर उसको रेपुटेशन के जरिए ले लिया, और आखिर में उसने अपनी विल इस्तेमाल की। अच्छा, मैं अपनी विल इस्तेमाल, अपनी मर्जी करती हूँ, मुझे नहीं सुनना जो मर्जी है। उसने पकड़ा उस फूल का और खाया, कुछ भी नहीं हुआ। जब वो अपने हस्बैंड के पास लेके, कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही उसने वो फल अपने हस्बैंड के मुंह में लगाया, as soon as was entered into his husband's body, जैसे उसके बॉडी के अंदर गया तो वो दोनों ने अपने आप को नंगा पाया। तो यही बताना चाहता हूं बहनों, लोगों, खुदा के लोगों, इस बात के लिए समझना बड़ा सख्त जरूरी है। That is why there are 2 kingdoms, they are after your soul, and your soul is the most important part in your body, in your trinity, triunity of human being. आपकी दोनों किंगडम इसी के पीछे हैं। अपनी सोल की खूब हिफाजत कीजिए। मैं आखिरी हवाला आपके साथ पढ़ना चाहूंगा। हालेलुया, थालामा सांता कराबान तुस्टोरिया, रेमा सांता कैरिबियन तुस्टोरिया। खुदा का जो बंदा है, फर्स्ट जॉन, वो क्या कहता है, रिकोमा सलिंथा रेबा सांता लाराबियन था। वो कहता है कि माय बिलवड,
मैं उस हवाले को शायद पूरा ना पढ़ पाऊं। 3 जॉन प्रॉब्ली फर्स्ट और सेकंड, 3 जॉन फर्स्ट और सेकंड क्या कहता है, मैं देखूं। पहला बाप उसकी दूसरी और तीसरी आयत क्या कहती है, पहली और दूसरी कुछ इस तरह सी है, मैं जरा देख लूं कि बिलवर्ड, हालेलुया, ईसा यूहन्ना, हाँ जी, ये क्या कहता है, यूहन्ना का तीसरा खत उसका पहला बाप और उसकी दूसरी आयत क्या कहती है। आप शगुफ्ता उर्दू में पढ़ेगी एंड आई विल ट्राई टू रीड इन इंग्लिश। हालेलुया, हाँ जी। ऐ प्यारे, मैं ये दुआ करता हूँ कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है, इसी तरह तू सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे, क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरी उस सच्चाई की गवाही दी जिस पर तू हकीकत में चलता है, तो मैं नहायत खुश हुआ। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई खुशी नहीं कि मैं अपने फर्जंदों को हक पर चलते हुए सुनूं। हालेलुया। मैं आपको सिर्फ आखिरी आयत आपके सामने पढ़ूंगा, क्योंकि मैंने जो बात आपके सामने रखनी थी खुदा के लोगों ने उसको लिया है। तीसरा यूहन्ना का तीसरा खत उसका पहला बाप और 2 आयत कहती है, Beloved, I pray that you may prosper in all things। वो कहता है रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर और हर तरह से, सेहत में, बिजनेस में, हर तरह से तरक्की कर। वो कहता है Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your souls prosper। क्या बात है, as your souls prosper, इसका मतलब है कि जब तक आपकी जिंदगी में प्रोस्पेरिटी नहीं आएगी, जब तक आपकी souls prosper नहीं होगी। This is the Lord, this is my Lord whom I'm speaking। खुदा के लोगों, आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, soul is a very important thing in your life। जो सोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसी के जरिए मैनिपुलेट के शैतान क्या करता है, आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। मैं आपके सामने जिंदा मिसाल था, मैं गानों को सुनता था, मैं कहता था कि मैं गानों के बगैर रह नहीं सकता, मुझे वो गाने सुनने हैं, मुझे ये सुनने हैं, मुझे वो करने हैं, मैंने ये करना है। एवरीथिंग वाज इमोशनली अटैच्ड इन माय बॉडी। लेकिन बताता चलूं, वो सब रेपुटेशन की वजह से मेरी जिंदगी में आया। मैंने उसी तरीके को, जैसे शैतान ने मेरी बॉडी को इस्तेमाल किया, इसी तरह खुदा ने बॉडी को इस्तेमाल किया, और मैंने अंदर इस खुदा के कलाम को डाला, इस रेपुटेशन के जरिए मेरी हार्ड डिस्क को चेंज कर दिया। Today my identity is different in the mighty name of Jesus। I change somebody's identity in the mighty name of Jesus। Hallelujah। Somebody will see this powerful apocalypse। Hallelujah। Father God, I decree and declare the people who they are hearing the voice of God, in the mighty name of Jesus, I infuse this into your system in the name of Jesus। और जितने लोग मेरी आवाज को सुनते हैं, खुदा आज ये बीमारियों से, कमजोरियों से, लानतों से यीशु मसीह नासरी के नाम से आजाद हो जाए। खुदा इनकी सोल्स के अंदर जितनी इमोशनल हीलिंग चाहिए, I decree and declare by the power of Holy Ghost, by the authority of Holy Ghost, it is entering in your system now in the name of Jesus। Hallelujah। यीशु के नाम से सारे अबलीसी हमले बाहर in the mighty name of Jesus। सारी लानते out in the mighty name of Jesus। यीशु के नाम से खुदा इनके माइंड, सोल एंड बॉडी in the mighty name of Jesus, इनके तीनों पार्ट को मैं हील होने का हुक्म करता हूं यीशु के नाम से। इनकी आंखें वो देखें जो आप दिखाना चाहते हैं, इनके कान वो सुने जो आप सुनाना चाहते हैं। हालेलुया। इनकी जुबान वो चखे जो आप सिखाना चाहते हैं in the mighty name of Jesus। आज के बाद उन सोचों से, उन चीजों से, इन कामों से यीशु मसीह नासरी के नाम से आजाद हो जाओ, चंगे हो जाओ। आपकी बीमारियां जा रही हैं। हालेलुया। इस जगह पर कोई barrenness नहीं रहेगी in the mighty name of Jesus। यीशु के नाम से I command every kind of barrenness, hallelujah, out in the mighty name of Jesus। हर किस्म का जादू टूना out in the mighty name of Jesus। और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जैसे हमने 3 चीजें डिक्लेयर की थी, मेडिसिन आपका पोर्शन नहीं है यीशु के नाम से। I cancel all kind of medicine in your system, hallelujah, in the mighty name of Jesus। हर किस्म के हड्डियों के रोग जा रहे यीशु के नाम से बाहर in the mighty name of Jesus। हर किस्म का barrenness और हर किस्म के हड्डियों के रोग और हर किस्म का डिमेंशिया, माइंड इश्यूज, हालेलुया, जो आपके ब्रेन के ताल्लुक से इश्यूज हैं, आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ऑटिज्म की बदबू आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से जा रहा है। समथिंग इज हैपनिंग चर्च, हालेलुया। ठीक है, मास्टर लावा ब्रोंटो सोकोरिबिया ला साता कराबिया लेजो मानते दाजुका हेरो बाटा लीजा मानता कलावा मानतुस्टोरिबिया इन द आईज, हालेलुया। आई कैन सी इन द realm of the spirit, hallelujah। ओ लीगा मासेंटुआ लेमन संटोरो प्रांतोलो सांता कराबिया टू स्टोरिबिया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज खुदा का कलाम आपसे मुखातिब है चर्च, हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आपको बताता चलूं, कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनको वाकई इमोशनल हीलिंग की जरूरत थी, हालेलुया।
उनकी souls, hallelujah, they were badly hurt, hallelujah, and in the mighty name of Jesus, आप एक बहन है, hallelujah, मैं देखता हूँ आत्मा में, hallelujah, आप एक बहन है और आप इमोशनली तौर पर बहुत ज्यादा हर्ट हो चुकी हैं, hallelujah, शैतान ने आपकी बॉडी के साथ बड़ा खिलवाड़ किया है, लाबा सांता कलाबंतुस्तुरिया, कुछ लोगों ने आपकी बॉडी का मिसयूज किया है, कुछ लोगों ने आपके ऊपर बहुत ज्यादा लफ्ज ऐसे दिए हैं और you are emotionally hurt. In the mighty name of Jesus, by power of Holy Ghost, in the mighty name of Jesus, Lama Santa, La Zuzianta, La Santa Calabiantu, O Rezo Mande, La Kika, Idai Santa Lurusibianta Lamabiantu. Thank you, Lord Jesus. Yes, to Kenam se, yes, to Kenam se, yes, to Kenam se, hallelujah. आप एक बहन है, hallelujah.